Good morning, dear students. Sanila ma'am is back. So, in today's computer class, we are going to do the exercise part as we have finished our reading part. So, now we'll move on to the exercise part. Okay. So, we'll write down the lesson name. Lesson 1. Computer, a smart machine. Okay, computer is a smart machine. We all know that. So today we are going to do the exercise part of the lesson. Before that, I want to ask you all. I have told you to read the lesson at least for 2 to 3 times. So I hope आप सबने read किया होगा, new words learn किए होंगे. So I will share you. I will share some exercise questions on screen. Okay, so you have to watch them carefully and write along with your mom. Okay, so let's get started. So yes, now we have completed till man-made things and natural things. So now you can see the activity is also finished. I have asked you to fill the blocks given in front of the pictures. So we all have completed this in our online classes. Now the remaining reading part I am going to finish today and then we'll start the exercise. Okay, so first topic for today is features of a machine. In this, all machines have some common things. Machines are man-made things. They are used to do special work. Machines make our work easy. Machines make work very fast and help us to save time. Most of the machines need fuel to run. Some machines run on electricity. As we all know that machines are man-made things. एज इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो आई हैव टॉट यू मैंने पिछले क्लास में भी आप लोग को बताया था कि मशीन्स क्या होते हैं मैन मेड थिंग्स दे आर यूज टू डू स्पेशल वर्क्स जिनको हम क्यों यूज़ करते हैं स्पेशल वर्क करने के लिए ऑल्सो मशीन्स मेक अवर वर्क ईजी मशीन हमारा वर्क ईजी कर देते हैं वेरी फास्ट वी कैन वर्क एंड ऑल्सो वी कैन सेव टाइम जितना फास्ट हम काम करेंगे उतना टाइम हमारा बचेगा तो इस तरह से मशीन हमारा वर्क ईजी भी करता है मोस्ट ऑफ द मशीन्स नीड फ्यूल टू रन कुछ मशीन्स को हमें फ्यूल देना पड़ता है चलने के लिए तो कुछ मशीन्स को हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है ठीक है सो नाउ नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको मशीन को उनके काम के साथ में मैच करना है ताकि हमारा काम इजी हो जाए और फास्टर हो जाए तो दो बच्चे स्कूल जा रहे हैं पैदल राइट तो क्या अगर हम साइकिल या वॉशिंग मशीन या टेबल फ़ैन यूज़ करेंगे तो बच्चे जल्दी स्कूल पहुंच पाएंगे हाँ तो इसमें से कौन सा होगा टेबल फ़ैन नो टेबल फ़ैन यूज़ करके कैसे आप स्कूल जा सकते हो वॉशिंग मशीन नो देन साइकिल तो अगर बच्चों के पास साइकिल होता तो जितने देर में वो पैदल चल रहे हैं और उनका पैर दुख रहा है उतनी देर में वो स्कूल पहुंच जाते राइट so they can reach on time so yes match the two childrens with cycle done everyone yes now the second is the child is using a handmade fan to blow air because he is feeling hot राइट उसे गर्मी लग रही है तो वो हैंडमेड एक फ़ैन यूज़ कर रहा है पंखा जिससे वो हवा कर सके लेकिन अगर वो एक टेबल फ़ैन यूज़ करे तो उसे प्रॉपर हवा मिलेगा सो फॉर दैट द चाइल्ड हैज़ टू यूज़ द टेबल फैन शोन इन योर बुक सो मैच द चाइल्ड विद द टेबल फैन yes after that you can use you can see that one lady is washing clothes and there is one washing machine left in your book है ना so now you can match that lady with the washing machine okay yes so now this activity is done now we'll turn the page and take out page number 8 now see on this page the next topic is computer a man-made machine so in this topic what is given is a computer is a man-made machine it needs electricity to work it works very fast and saves our time it never gets bored or tired. We can do many things on a computer. We can play games, we can listen to music
or watch films. We can draw and color pictures. We can write things without using paper and pencil. So, when we are talking about computer, we all know that computer is an electronic device. It is also a man-made machine. It needs electricity to work. It also works fast and saves our time. जैसे कि हम सबको पता है कि कंप्यूटर एक मैन मेड मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है वर्क करने के लिए. ये बहुत फास्ट वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अ मैन, और वो हमारा टाइम भी बहुत सेव करता है. ठीक है, हम जितने टास्क देते हैं वो कभी बोर नहीं होता, कंटिन्यूसली हम उससे काम करवा सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं हम कंप्यूटर में? वी कैन प्ले गेम्स, we can listen to music, we can watch films, we can draw or color pictures, write things without using pencil or paper. आप बिना पेंसिल या पेपर के या पेन के आप जो चाहे लिख सकते हो और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो. कलर कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, उसका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो. म्यूज़िक सुन सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं. ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं, राइट. सो अब नीचे देखो आपको दिया हुआ है प्लेसेस वेयर कंप्यूटर इज़ यूज्ड. तो इसमें क्या बताया आपको कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. सो अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड एट मैनी प्लेसेस. सम प्लेसेस वेयर पीपल यूज़ कंप्यूटर्स आर. कुछ जगहों के पिक्चर्स दिए हुए हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं. सो व्हाट आर दैट प्लेसेस? एट होम, स्कूल, बैंक, ऑफिसेस, होटल्स, रेलवे स्टेशंस. घर पे क्या करते हो आप? कार्टून देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, या ड्राइंग करते हो, या गेम्स खेलते हो. स्कूल में क्या करते हो? पढ़ाई करते हो, उसको यूज़ करके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हो. जैसे कि आप लोग अभी इस साल तो स्कूल नहीं आ पा रहे हो, तो आप लोग ने कंप्यूटर लैब नहीं देखा है, आप लोग वहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो. लेकिन जब आप लोग नेक्स्ट ईयर स्कूल रीओपन होने पे स्कूल आओगे तो मैं आप लोगों को कंप्यूटर लैब ले जाऊँगी जहाँ पे हम कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट इज़ इन बैंक्स. बैंक में क्या यूज़ है? बैंक में कस्टमर के डिटेल्स, कस्टमर के अकाउंट की डिटेल्स, उनके ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, ये सब हम रखते हैं, है ना. और ऑफिस में पापा या मम्मा ऑफिस जाते होंगे, है ना, वो लोग वहाँ पे उसको यूज़ करके काम करते हैं, मेल्स भेजते हैं, लेटर टाइप करते हैं, है ना, प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करते हैं. ऐसे ही होटल्स में जितने भी लोग आके होटल में रह रहे हैं उनके पूरे डेटा रहता है उसमें. रेलवे स्टेशन में आप लोग टिकट बुक कराते हो और आपके सारे डिटेल्स रहते हैं कि आपकी फ़्लाइट कितने बजे है, आपकी अगर एयरपोर्ट है तो आपका फ़्लाइट कितने बजे, रेलवे स्टेशन है तो आपका ट्रेन कितने बजे है, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हो, सारी डिटेल्स, है ना. सो ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों के लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं अलग अलग प्लेसेस पे. ठीक है. Now we are moving towards our exercise. So the first question of your exercise is tick the right option. Okay, so all of you take out your pencil and start ticking the question answers along with me. ठीक है. तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, which of these is a machine. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? which of these is a machine. इसमें क्या लिखा है? पहला, दूसरा और तीसरा जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें से मशीन कौन सा है. तो क्या क्या है आपको ऑप्शन में? एक टीवी स्क्रीन है, एक बॉल है और एक सोफ़ा है. तो इनमें से मशीन कौन सा है? मशीन वो है जो फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलता है. तो बैलून में तो हम फ्यूल भी नहीं डालते हैं, पेट्रोल या डीजल तो नहीं देते, या तेल तो नहीं डालते उसमें, और ना ही वो बिजली से चलता है, वो तो एयर भरने से चलता है. और दूसरा क्या है? सोफ़ा में तो हम रुई भरते हैं या जो भी स्टफ मटेरियल्स होते हैं हमारे, लेकिन फ्यूल नहीं देते हम उसे, है ना. सो द फर्स्ट ऑप्शन टीवी, मॉनिटर, स्क्रीन, है ना. सो टिक ऑन फर्स्ट ऑप्शन एवरीवन. देन सेकंड इज विच मशीन इज़ यूज्ड टू वॉश एंड ड्राई क्लोथ्स. आपको पूछा है कि इसमें से कौन सा मशीन है जिसको यूज़ करके आप कपड़े वॉश करते हो और ड्राई करते हो. सो देर आर ऑप्शंस गिवन: एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन एंड मिक्सर. 3 ऑप्शंस दिए हुए. पहला वाला क्या है? AC, दैट इज़ एयर कंडीशनर. सेकेंड इज़ वॉशिंग मशीन एंड द थर्ड इज़ मिक्सर. तो वी सिंपली यूज़, वी ऑल नो दैट वी यूज़ वॉशिंग मशीन टू वॉश एंड ड्राई अवर क्लोथ्स. सो टिक द ऑप्शन B. सेकेंड वाले पे टिक लगाओ. नाउ द थर्ड वन: विच मशीन प्रोवाइड्स अस फ्रेश एंड कूल एयर. On the next page
you can see the third question. Which machine provides us fresh and cool air? The options are refrigerator, washing machine and air conditioner. आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड एयर कंडीशनर. तो एयर कंडीशनर से हमें फ्रेश और कूल एयर मिलता है. जब गर्मी होती है तो हम एसी ऑन करते हैं, राइट? सो टिक ऑन द राइट ऑप्शन, दैट इज द थर्ड वन, एयर कंडीशनर. Now see, question number B, fill in the blanks with the correct words. First one is, machines are man-made things. Okay, machines are man-made things. So write down, first fill in the blanks, man-made. आपको ग्रीन कलर के बॉक्स में हर fill in the blanks के 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, दैट इज़ नेचुरल एंड मैन मेड. फर्स्ट दिया हुआ है तो उसमें से राइट वन कौन सा है? मैन मेड. तो मैन मेड पे टिक लगाओ और फिल इन द ब्लैंक्स जो दी हुई है वहाँ पर मैन मेड लिखो. आपको मैम के साथ साथ लिखते चलना है. जिसको अगर लग रहा है कि स्पीड नहीं आ पा रही है तो दे कैन पॉज द वीडियो एंड राइट एंड देन यू कैन अगेन प्ले द वीडियो एंड वॉच इट. ओके, येस. द सेकेंड वन इज, मशीन्स हेल्प अस टू ब्लैंक्स टाइम. सेव टाइम. मशीन्स के हेल्प से हम टाइम सेव करते हैं. सो देर आर 2 ऑप्शंस, सेव एंड वेस्ट. सेव पे टिक लगाओ और ब्लैंक्स में भी सेव लिखो. Done. Now the third one is, a computer needs electricity to work. पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो टिक ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड राइट इलेक्ट्रिसिटी इन द ब्लैंक्स. The fourth one is, a computer is a smart machine. Bore and smart are the options. Tick on smart and write smart in the given blanks. Done. Now directly go down. अब देखो यहाँ पे आपको एक्टिविटी टाइम दी हुई है. हमने क्वेश्चन आंसर अभी स्किप कर दिया है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आंसर हम लोग क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे. ओके, सो लीव द क्वेश्चन आंसर्स गिवन इन योर बुक. हमें बुक में नहीं लिखना है उसे, हम डायरेक्टली इसे क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे. ठीक है, तो कॉपी वर्क मैम आपको बाद में देंगी. हम लोग क्या करेंगे, पहले बुक वर्क कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सो सी दिस एक्टिविटी टाइम. गेस हु आई एम, हु एम आई, सॉरी. तो हमें रिडल दिया हुआ है. ठीक है, उसमें से हमें सही आंसर्स फाइंड आउट करने. पहेली दी हुई है आपको उसे सॉल्व करना है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज, आई स्टिच क्लोथ्स फॉर यू. आई स्टिच क्लोथ्स फॉर यू. आपको नीचे 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं, इसमें से देख के बताओ आप क्लोथ्स कैसे स्टिच करते हो, सिलाई कैसे करते हो? क्लॉक यूज़ करके, आयरन बॉक्स यूज़ करके, या स्विंग मशीन यूज़ करके, या एरोप्लेन? Yes, swing machine. So write down swing machine in the first blank. Now see, second one, I fly high in the sky. I fly high in the sky. The blanks is aeroplane. Aeroplane कहाँ उड़ता है? High in the sky. Third one is, I can iron your clothes. I can iron your clothes. What we use to iron our clothes? We use iron box. So write down iron box in the third blank. Fourth is, I can tell you the time. I can tell you the time. So who can tell us the time? Yes, clock. So write down clock in the fourth blank. So this was it for today, my dear students. Now from next class, we'll do the remaining part of our exercise, that is question answer and the exercise of page number 10. अभी पेज नंबर 10 का भी आपका एक्सरसाइज बचा हुआ है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, यस. So now I hope you all have completed along with me. So I hope आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्लियरली समझ में आए होंगे और आप लोगों ने उसको अच्छे से मार्क कर लिया होगा अपने बुक में.
So now the remaining part we'll do in our next class. I hope आप सब कुछ समझ में आ रहा है. Whatever doubts you are having, you can ask me while we are having our online classes. है ना? The online classes are for you only, people. You have to attend it regularly and you can ask your whatever queries you are having. Okay? So this was it. So in next class we will complete the lesson. Okay? So keep learning and keep practicing, my dear students. Good day, everyone.